Fine, great. Now, how many of you know face problems in true false not given and yes no not given in headings? So what I have done is I have over the last 2 or 3 lectures I have started concentrating on reading. So I'll be taking on my next few lectures will be based on headings. So I'm also going to take a lecture next week, probably on Saturday once again, and it is also going to concentrate more on reading. So anybody who is basically facing problems in uh, reading should basically attend my lecture. I'm sure they will definitely have their doubts cleared with me. Okay, now as you know that in IELTS there are first and the one last time, is my voice audible to each and every one of you? Yes or no? Write in the chat box. Great, very good. Thank you so much. Thanks. Okay, so in this session I'm going to teach you, we'll be doing few things about true false and not given, and we'll also take one more difficult session. Okay, as you know that in IELTS there are two types of questions that comes in reading. First is true false not given, and the other one is yes no not given. Technically there is no difference between true false not given and yes no not given. So if you ask me as a student कि सर हमें क्या फर्क होगा हमारे इन तरीके में, technically on your side there is no difference. So you will approach true false not given and yes no not given in the same way as you will be approaching I mean जैसे कि अगर true false not given है और yes no not given है तो दोनों को आप वैसे ही अलग same तरीके से approach करोगे. Now the question is true false not given is where the facts are being checked, and yes no not given is the one in which the author views is getting checked. So technically speaking, true false not given is relatively easier to do in comparison to yes not given because you are dealing with facts. लेकिन अगर आप methodology की बात करें तो दोनों की methodology same है. You don't need to worry about that part. Now, true false not given questions requires you to identify if information is in the text is true, false, or not given. This is probably the most difficult type of questions on the reading paper. I have seen students facing lots and lots of problems in true, false, and not given. Now, uh, out of the 3 passages that you have in your reading examination, you may have 5 to 7 questions based on true, false, not given, or yes, no, not given. लेकिन ऐसा भी मानने की जरूरत नहीं है. बहुत कम बार ऐसा देखा गया है. You might be a lucky person or lucky student to not have true false not given on the day of the examination. बट अगर आपका नसीब खराब है थोड़ा सा तो मैंने ऐसा भी देखा हुआ है कि 3 पैसेजेस में 5 से 7 ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आते हैं. सो इन टोटलिटी यू मे हैव 17-18 ट्रू फॉल्स नॉट गिवन इन द एंटायर एग्जामिनेशन. सो यू कैन नॉट इग्नोर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एनीवे. लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आंसर्स जो होंगे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के, दे यूजुअली कम इन सीक्वेंशियल ऑर्डर. आई वुड रादर से ज्यादातर सीक्वेंशियल ऑर्डर में ही आते हैं. So you can expect the second answer of second question to come down only after first question. Similarly, the answer of third question to come down after second question. तो ज्यादातर sequence में ही आते हैं. Okay. Now, sir, true false not given में होता क्या है? This is how you are going to have true false not given or yes no not given in the real examination. आप देख सकते हैं questions में तकरीबन यहाँ पे 6 questions है, 27 to 32. एंड एग्जैक्टली ऊपर आपको इंस्ट्रक्शंस दी है कि यस नो नॉट गिवन लिखना है या जो भी लिखना है. रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यस नो नॉट गिवन लिखने के तरीके भी अलग अलग होते हैं. many a times I have seen that instead of writing yes no not given, they simply say you either write y n और ng. अगर आपको ऐसा बोला गया है तो आप वही लिखोगे. You would not be writing yes no not given, you will be writing y n और ng. ये चीज आप अगर दिमाग में रखो. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन लिखा है तो वहां पे भी ऐसा होता है, या तो फिर आपको ट्रू लिखना है या तो फिर टी. नाउ मेनी a times in many I mean books it is mentioned that sir y का मैं यस का y कर दूं या y का यस कर दूं तो चलेगा. लेकिन मैं एग्जामिनर रह चुका हूं तो मुझे पता है कि कभी कभार अगर उन्होंने सोच लिया कि इस बार का एग्जामिनेशन का चेकिंग टफ हो तो ये गलतियां फिर माफ नहीं की जाती. सो ऑल यू नीड टू डू इज दैट आपकी बहुत बड़ी अगर गलती हो जाएगी अगर आपने आंसर ठीक से देखा, सुना, पढ़ा एंड यू आर राइटिंग राइट आंसर बट यू आर कमिटिंग अ ब्लंडर बाय राइटिंग वाई इंस्टेड ऑफ यस, तो ये गलती मत करना किसी भी हिसाब से. जहां पे जो भी यहाँ पे लिखा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो है वो आपको लिखना है.
यस है तो यही इसी तरह से यस लिखो, कैपिटल में ही लिखना है, वैसे भी आप आंसर सारे कैपिटल्स में ही लिखोगे। और नो है तो ऐसे ही लिखोगे। नॉट गिवन ऑल्सो यू शुड बी राइटिंग लाइक दिस। अगेन नॉट गिवन लिखते हो तो नॉट और गिवन के बीच में गैप होना जरूरी है एग्जाम में भी, ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओके sir, what exactly are the strategies for true false not given? Now I'll first of all explain you something, that always read the instructions carefully and make sure you know if it is a true false not given or yes no not given. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जो पहले बताया था। Read all the statements carefully, trying to understand what that whole sentence means rather than simply highlighting keywords. कीवर्ड्स तो आप हाईलाइट करोगे लेकिन ओवरऑल मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ आप कीवर्ड से जाओगे, यू आर बाउंड टू कमिट मिस्टेक्स। काफी वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको परेशान परेशान कर देंगे, जैसे कि सम, ऑलवेज, इनवेरिएबली, सोली, मे, माइट। एक चीज याद रखो, ऐसे वर्ड्स जैसे कि मे, माइट, पॉसिबली, प्रोबेबली, ऐसे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पैराग्राफ में दिया है आई मे गो टू मुंबई टुमारो, गौर से सुनो, आई मे गो टू मुंबई टुमारो, आई माइट गो टू मुंबई टुमारो, आई प्रोबेबली वुड गो टू मुंबई टुमारो, मतलब मैं जा भी सकता हूं, नहीं भी जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को सोचना। तो ऐसे केस में एक चीज का याद रखो, अगर पैराग्राफ में आई मे, माइट, पॉसिबली, प्रोबेबली, ऐसे टेन टू भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, टेन टू, आई टेन टू बिकम, आई टेन टू गेट कैच कोल्ड व्हेन इट इज विंटर, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। और पैराग्राफ में फर्ज करो अगर क्वेश्चन में ऐसा वर्ड दिया है कि विल, ऑलवेज, सेल, इनवेरिएबली, सोलली, ऐसे वर्ड का इस्तेमाल किया है तो ज्यादातर आंसर फॉल्स माना जाता है। आई रिपीट, इन द पैराग्राफ वर्ड्स लाइक मे, माइट, पॉसिबली, प्रोबेबली, टेन टू, ससेप्टिबल टू, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जहां पे हो सकता है, नहीं हो सकता। और क्वेश्चन में दिया है विल, ऑलवेज, शुड, इनवेरिएबली, सोलली, ऐसे वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, देन मोस्ट ऑफ द टाइम द आंसर इज गोइंग टू बी मार्क्ड एज अ फॉल्स आंसर, मतलब वो फॉल्स या फिर नो हो सकता है। ओके, देन कम्स, सर आगे क्या? Try to think of what synonyms might be in the text. This will help you to identify matching part of the text. मैं इस पैराग्राफ जो हम इसकी बात करेंगे इसमें भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि synonyms बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं हर वक्त ये कहता आया हूं कि वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितनी अच्छी वोकैबुलरी करोगे, इट इज नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प यू इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, इट इज इक्वली गोइंग टू हेल्प यू आउट इन रीडिंग और लिसनिंग में भी। लिसनिंग में और रीडिंग में काफी जगह पे वोकैबुलरी का बहुत इस्तेमाल किया गया है। सर ज्यादा से ज्यादा इसमें अगर 6 क्वेश्चंस है तो मैं कितने साथ में एक साथ 6 क्वेश्चंस पढ़ूं? आप 6 क्वेश्चंस पढ़ सकते हो। There is nothing wrong in reading all these 6 questions, but you won't be able to remember all these 6 questions. ये 6 questions आपको याद नहीं रहेंगे। तो ऐसे केस में बेहतर है कि आप 1 से 2 questions ही एक साथ पढ़े। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ओनली रीड 1 or 2 questions at a time, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मेरी मानो तो एक साथ 2 questions पढ़ो, क्योंकि मैं समझाना चाहूंगा, अगर 2 क्वेश्चंस पढ़ते हो तो फायदा ये रहेगा कि अगर पहले क्वेश्चन का आंसर नॉट गिवन है, बाद में दूसरा क्वेश्चन है, अगर आप करते करते जा रहे हो तो दूसरे क्वेश्चन अगर उसका आंसर आ जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि ऊपर ही उसके ऊपर ही पहले का आंसर होना चाहिए। और अगर वो नहीं है, इसका मतलब ये हुआ द आंसर इज गोइंग टू बी नॉट गिवन। आई रिपीट, अगर दूसरा भी नॉट गिवन है तो बात अलग है, बट ऐसा रेरिटी में होता है, लेकिन 2 क्वेश्चंस पढ़ने के फायदे जबरदस्त है। सो आई स्ट्रांगली रेकमेंड एक साथ 2 क्वेश्चंस पढ़ो। अगर पहले क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है, देन यू ऐड थर्ड क्वेश्चन इन योर मेमोरी। सेकंड का आंसर आ जाता है, ऐड फोर्थ क्वेश्चन इन योर मेमोरी। कहने का मतलब हर एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड हैव मेमोरी ऑफ 2 क्वेश्चंस और उसके कीवर्ड्स मार्क कर लो, ताकि फर्स्ट करो कि जो आप सेकंड है अगर वो नॉट गिवन है, वरना क्या होगा, थर्ड पता नहीं है कहां पे होगा, तो यू विल बी रिक्वायर्ड टू रीड द एंटायर पैसेज। लेकिन थर्ड का आंसर बीच में मिल जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि उसके आपको पता है कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या यस नॉट गिवन ऑलवेज कम्स इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो उससे फायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि ऊपर का आंसर नहीं आया है, थर्ड का आ गया है, तो जाहिर है सेकंड द आंसर इज गोइंग टू बी नॉट गिवन। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करने वाली बात है, आपको मेमोराइज कीजिए। दूसरी बात, मैंने काफी बच्चों को देखा हुआ है, दे ऑलवेज आर इन हरी
इन रीडिंग द क्वेश्चन। ये गलती बिल्कुल मत करो। कोई भी क्वेश्चन है उसको ऐसे रीड करो कि उसको दोबारा रीड करने की जरूरत न पड़े। You should try to read it in such way that you might not be required. Yeah, I am not saying that you should not read it again, but why to waste unnecessary time reading the questions again and again? बेहतर ये है बिल्कुल दिल से क्वेश्चन को पढ़ो, उसको अपने नेटिव लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करो, ऐसे कन्वर्ट करो कि बिल्कुल याद रह जाए, एंड देन ट्राई टू गो थ्रू द ऑप्शन, आई मीन पैराग्राफ। तो क्या होगा, आपका टोटल कंसंट्रेशन स्कैनिंग और स्कीमिंग पे ही होगा। यू माइट नॉट बी रिक्वायर्ड टू रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, द स्टेटमेंट्स फॉलो अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अगर पहले का आंसर है तो उसके पीछे ही दूसरे का आंसर होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्राई नॉट टू वेस्ट टू मच ऑफ टाइम ऑन वन क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि एक क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल रहा है, लीव दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस। बाकी जब वो उस ग्रुप के सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, यू कैन री अटेम्प्ट इट, रिविजिट दैट क्वेश्चन एंड मेक श्योर यू गिव द आंसर। एक चीज का याद रखो, आपको उस क्वेश्चन का जो भी मार्किंग करना है, मतलब आपको वॉट एवर यू वांट टू राइट द आंसर ऑफ, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, जो भी रखना है उसी ग्रुप के बाद रख दो। अगर आप सोचते हो कि मुझे तीन पैराग्राफ्स के बाद उस पैराग्राफ का, पहले वाले पैराग्राफ का याद रहेगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो वॉट एवर गेस वर्क दैट यू नीड टू मेक श्योर यू आर डूइंग इट एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। और मैं हर वक्त अपने रीडिंग के क्वेश्चंस में बताता हूं कि आपको एक ग्रुप में कितना टाइम जाया करना है। कैन एनीवन हेल्प मी आउट रिकॉलिंग कि एक ग्रुप में आपको कितना करना है? याद आ रहा है? मैंने आपको बताया था कि अगर एक ग्रुप है तो उसका कैलकुलेशन क्या है? हाउ मेनी मिनट्स आर यू रिक्वायर्ड टू स्पेंड ऑन वन ग्रुप? कैन एनीवन टेल मी यस और नो? चलो चलो बताओ। मैंने एक कैलकुलेशन बताया था कि एक अगर चीज है, यस मैंने, अगर किसी को याद है तो मुझे बताओ। 20 मिनट्स तो धरा पूरे पैराग्राफ। अरे भाई आप लोग मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है, लोग ऐसे ही बोल रहे हैं कि 10 मिनट 20 मिनट, ऐसा नहीं है। मैंने आपको एक कैलकुलेशन बताया था। लेट मी एक्सप्लेन यू दैट कैलकुलेशन वंस अगेन। हाउ मेनी मिनट्स आर देयर फॉर योर एंटायर रीडिंग पैसेज? हाउ मेनी मिनट्स आर देयर फॉर योर एंटायर रीडिंग पैसेज? 60 मिनट्स, हाँ या ना? 60 मिनट्स का पैसेज होता है, बराबर। एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस आर गिवन टू यू? कितने क्वेश्चंस होते हैं? How many questions are you supposed to attend? 40 questions. Very good. तो हम लोग क्या करेंगे? What the basic calculation is going to be something like this. अगर हम 60 को 40 से डिवाइड करते हैं, you get 1.5 मिनट्स। कितने मिनट्स मिलेंगे आपको? 1.5 मिनट्स। मतलब एक क्वेश्चन का जो है ड्यूरेशन है 1.5 मिनट्स। इसका मतलब अब ये तो हो नहीं सकता कि आप हर एक क्वेश्चन पे एग्जैक्टली 1.5 मिनट स्पेंड करो। तो जनरल लॉजिक ये है कि ग्रुप में अगर 6 क्वेश्चंस है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट मल्टीप्लाई 6 क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि उस ट्रू फॉल्स वाले नॉट गिवन वाले ग्रुप में 6 क्वेश्चन है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज मल्टीप्लाई 6 इंटू 1.5। क्या आंसर निकल के आता है? चलो बताओ। 6 इंटू 1.5, व्हाट्स द आंसर गाइस? मैथमेटिक्स बहुत गंदा लग रहा है आप लोगों का। 9 मिनट्स, वेरी गुड। सो यू गेट एन एवरेज इज 9 मिनट्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक इस ग्रुप में आप 9 से 9 मिनट अगर ठीक एग्जैक्टली पकड़ के ना चलते हुए 9 से 9.5 मिनट का आपको टाइम स्पेंड करना है इन दिस ग्रुप। आर यू गेटिंग व्हाट द कैलकुलेशन इज नाउ? अंडरस्टूड एवरीबडी? ये चीज हर वक्त याद रखो, एक ग्रुप में कितना टाइम जाया करना है, तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। इज इट गेटिंग क्लियर? ओके ग्रेट। नाउ let us go ahead with the true false not given. ये आपका पैराग्राफ है। दिस इज अ वेरी गुड पैराग्राफ एंड आई वांट somebody to read it out for me, जैसे कि मैं हर वक्त करवाता हूं। So who is going to read it out for me? Let me give chance to others as well. Who is going to help me out in reading? Yeah, Jaldi is going to help me out. Jaldi, let us see how it works. Jaldi has told me first. Yeah, Jaldi, I have unmuted you. Can you unmute yourself? Sorry, I'm so sorry. Do it once again. Hello, sir. Good evening. Yeah. Yeah, wristwatch नहीं है allowed, Jaimini. Hi, good evening first of all. Somebody has asked me a question कि is wristwatch allowed? Wristwatch allowed नहीं है, लेकिन वहाँ पे घड़ी, there will be a watch there, so you don't need to worry. Okay. Now, before we go ahead, I want everybody to concentrate on this passage. This passage is about British politics. And यहाँ पे दो parties है British politics में। दो party, एक तो है Labour Party and एक तो है Conservative Party. So it is very very important. हम लोग क्या करेंगे कि एक एक पैसेज पढ़ेंगे। Let us see. जल्दी, can you help me out? The British Yes, political sir. scene. Yeah, please go ahead. The British political Louder, scene louder, is. because you are being listened by everybody. Okay, sir.
The British political scene is dominated by two major parties that have quite different political agendas. थोड़ा सा स्लो पढ़ोगे जल्दी? Yeah. Okay, sir. Yeah. The British political scene is dominated by two major parties that have quite different political agendas. Very good. However, the ideological distance between the Labour Party and the Conservative Party has become less marked. लेस and the मार्क का policies मतलब होता है अब ऐसे इन दोनों के डिफरेंस अब इतने बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कम डिफरेंस है. ओके. and their policies more difficult to tell apart in recent years. अब उन दोनों के In बीच fact, में सॉरी टू बॉदर यू, इन दोनों के बीच में वो no, it's खास okay. डिफरेंस नहीं रहा. प्लीज गो हेड. In fact, it would be true to say that both parties consist of conservative, moderate, and radical elements, and therefore general public is often perplexed about which party to vote for. Nonetheless, it is usual to find that a British voter will lean towards supporting one of these two parties and remain faithful to that party for life. ओके फाइन. सो दो पार्टीज डोमिनेट करती है ब्रिटिश पॉलिटिकल सीन में. अब दोनों के बीच में ज्यादा कोई फर्क नहीं रहा, लेकिन ज्यादातर पब्लिक ज्यादातर परप्लेक्स का मतलब होता है कंफ्यूज्ड. सो यूजुअली अ पर्सन इज आई मीन जो वोटर होता है वो कंफ्यूज्ड हो जाता है कि किसको वोट करे, लेकिन ज्यादातर उन दोनों में कोई खास अभी फर्क नहीं रहा है. ओके फाइन. नाउ लेबर पार्टी. The Labour Party's manifest objective नाउ is to मैनिफेस्ट का safeguard मतलब होता है मेन ऑब्जेक्टिव. Everybody, for you, in case if you're not able to understand a single word, please do let me know. यहाँ पे lean towards, lean का मतलब झुकना. I am leaning towards you. Leaning का मतलब झुकना, जो पहले पैराग्राफ में सेकंड लास्ट लाइन पे है. फेथफुल मतलब वफादार, आपको पता है. ओके. लेबर पार्टीज मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का मतलब मेन ऑब्जेक्टिव. या is to safeguard the interests of common working man and woman सेफगार्ड and in मतलब effect सेफगार्ड का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना. क्लियर? ओके प्लीज गो अहेड. give them political representation in parliament. The party has always had strong connections with the trade unions and before coming to power was passionately committed to the concept of welfare society and people who are less fortunate than others are politically and financially assisted in their quest for a more equitable slice of economic pie. The main problem is that such socialist agendas are extremely expensive to implement and maintain, even in a comparatively wealthy country with a large working and hence tax-paying population base. Welfare societies tend towards bankruptcy. मतलब सॉरी, bankruptcy का मतलब, can anyone tell me what is the meaning of word bankruptcy? Yes, can anyone tell me the meaning of word bankruptcy? What is the meaning of word bankruptcy? मतलब नादारी निकालना. फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर किसी से पैसे लिए हैं बट ही इज नॉट एबल टू रिटर्न द मनी बैक टू यू, सो ऐसे केस में वेरी गुड, इंस्टॉलमेंट मतलब अब वो पैसे देने के लिए is not having enough money to pay you back, so that means he is a bankrupt. Okay, unless government spending. Yeah. Unless government spending is kept in check. Fortunately, the present government recognizes this and has रजिस्टर्ड रेकलेस स्पेंडिंग. रेकलेस का मतलब बिन जवाबदार स्पेंडिंग. तो यहाँ पे जो पैराग्राफ है, इट इज एब्सोल्युटली डेडिकेटेड टू लेबर पार्टी. लेबर पार्टी के बारे में जिक्र है. अब जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी है. नाउ जल्दी, आई वुड लाइक टू गिव चांस टू अदर. इज इट फाइन? Yes, sir. ओके फाइन. कैन एनीवन हेल्प मी आउट इन रीडिंग? आई वांट समबडी एल्स. बॉय, कोई लड़का क्यों नहीं बोल रहा है कि मुझे करना है? आई वांट आंसर. मी जैमिनी, आई लाइक टू गिव ऑप्शन टू बॉय. Who is going to help me out? चलो चलो चलो, कौन ट्राई करेगा? Write in the chat box. Chirag, will you do that? Very good. Let me help you out, Chirag. क्या Chirag? Tell me. Yeah, sorry, I have joined actually late, so No issues, no issues. तो भी आप पढ़ तो सकते हो ना? yes. या अब देखो, आपने पढ़ना, देखिए मैं सब लोगों को बताता हूँ, पढ़ने का तरीका आप ऐसे करो कि इट शुड जल्दी एज रीड. वेरी गुड, दैट्स फाइन, ग्रेट. बट आई वांट एवरीबॉडी टू रीड इट इन सच ए वे कि आप कॉमा है, फुल स्टॉप है, उसको यू गिव जस्टिस टू दैट, वरना समझ ही नहीं आएगा. अगर आप कॉमा और जस्टिस, फुल स्टॉप को जस्टिस नहीं दोगे तो आप कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पाओगे. जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, द कंजर्वेटिव पार्टी ऑन द अदर हैंड argues that the best way to ensure a fair division of wealth in the country is to allow more freedom to create it. आप ऐसे पढ़ो तो आपको बिल्कुल दिमाग में comprehension आ जाएगा. चिराग, may you? yes. Yeah, turn this in turn. This sentence means more opportunities, job created, etc. And therefore, एक मिनट, एक्सेट्रा है कि एटसेट्रा है? etc.
It is at cetera. Many people read etc. it wrong. It is at cetera. etc. Okay, then therefore And therefore more wealth available at all. to Just all. Yeah, just is how the poor are to share in the distribution of this wealth beyond being given, at least in theory, the opportunity to create is, however, less well understood. Practice, of course, may make nonsense nonsense even the best theoretical intentions. intentions, and often the less politically powerful are badly created for under Catered, government. created nahi, catered. Oh, sorry, scattered for under government implementing इम्प्लीमेंटिंग फ्री फॉर free ऑल policy. पॉलिसीज। तो यहाँ पे उन्होंने बात की है कंजर्वेटिव पार्टी की, जैसे कि फॉर एग्जांपल बीजेपी और कांग्रेस है, तो बीजेपी कैसे काम करती है, कांग्रेस कैसे काम करती है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जिक्र है। इन दिस पैराग्राफ दे हैव मेंशन हाउ लेबर पार्टी वर्क्स, in this paragraph they have mentioned how conservative party works. Now the last paragraph. Now thank you, Chirag, I am going to read the last paragraph for all of you. Is it fine? Okay. It is surprising given the current homogeneity. होमोजेनिटी का मतलब दोनों में जो भिन्नता है, अभिन्नता, भिन्नता नहीं, अभिन्नता का मतलब होता है हिट्रोजेनिटी, सॉरी, भिन्नता का मतलब होता है हिट्रोजेनिटी, और अभिन्नता का मतलब होता है होमोजेनिटी, मतलब मिक्सचर of the two major parties, that less attention than elsewhere in Europe is paid to the smaller political parties such as the Greens and the Liberal Democrats. This may be because British voters distrust parties with platforms based around one or two major current issues alone. The Green Party, for example, is almost solely concerned with the environment. Moreover, when it comes to casting a vote, the history shows that British public tends to resist change, and thus the status quo is maintained. Is it clear? एक बार आप गौर से देख लो, because now I am going to get started with very good true, false and not given. एक बार फिर से देख लो आप लोग सब, क्लियर हो गया? सी वेन एवर देर इज अ रीडिंग पैसेज, मैंने पहले भी आपको समझाया था कि रीडिंग पैसेज इज लाइक ए स्मॉल स्टोरी, इट्स लाइक ए स्मॉल स्टोरी। स्मॉल स्टोरी में कैसा होता है, को मतलब वही, the same maintenance, same चीज, same look, situation, that is what we call a status quo. Now first and the foremost thing, whenever you are doing a reading passage, my dear students, एक चीज का ध्यान रखो कि रीडिंग पैसेज में ऊपर जो इंट्रोडक्शन है, पहला जो पैराग्राफ होता है, यूजुअली इट इज डेडिकेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट, उसके बारे में होता है। देन दे विल डिस्कस द प्रेजेंट सिनारियो, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बारे में जिक्र है। एंड द लास्ट पैराग्राफ इज अबाउट व्हाट इज गोइंग टू प्रोबेबली हैपन इन द फ्यूचर। ये यूजुअली प्रोबेबली होता है जनरली कोई भी पैराग्राफ का, जिसमें पहले पार्ट ऑफ द पैसेज में दे आर टॉकिंग अबाउट द बैकग्राउंड प्रोबेबली और प्रेजेंट, बीच में प्रेजेंट ही होता है, और लास्ट पैराग्राफ में भविष्य के बारे में जिक्र होता है। ये ज्यादातर पैराग्राफ पैसेज में ऐसी सीक्वेंस देखी गई है। नाउ लेट अस गो अहेड नाउ विद द फर्स्ट थिंग। नाउ आई वांट द आंसर, आई एम गोइंग टू गिव यू 1.5 minutes पर क्वेश्चन। लेट अस सी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डोंट राइट मैं 1.5 मिनट के बाद बोलूँ, उसी के बाद आप आंसर बताओगे। मैंने पैराग्राफ आपके लिए रख लिया है यहाँ पे। sorry yeah. Yeah, Britons and British are the same, Dev.
या इज इट डन स्टूडेंट्स? टाइम इज अप. ओके फाइन. क्या आंसर आएगा बताओ? आई वांट आंसर्स फ्रॉम एवरीबॉडी. एटलीस्ट यू नीड टू गिव मी ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन. ओके फाइन. अब ज्यादातर मैं देख सकता हूँ ज्यादातर बच्चों का आंसर है ट्रू. एग्जैक्टली. ओहो क्या बात है, काफी लोगों ने फॉल्स भी दिया है और काफी लोगों ने नॉट गिवन भी दिया है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. दिस इज द रीजन आई लाइक ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, बिकॉज यू गेट आंसर्स फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. ओके. नाउ यहाँ पे दिया है, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. ब्रिटन्स यूजुअली वोट फॉर द पार्टी दैट सपोर्टेड अर्ली इन लाइफ. ओके. Now यहाँ पे बात, now you can see that this is only given in the last three lines, you know, nothing of this information is not mentioned anywhere else. So I'm reading the last three lines. Nonetheless, it is usual to find that a British voter will lean towards supporting one of these two parties and remain faithful to that party for life. So what is the answer going to be? Britons usually vote for party they supported early in life. Nonetheless, it is usual to find that a British voter will lean towards supporting one of these two parties and remain faithful to that party for life. Now here it is usual to find. Can you tell me over here, as you can see that यहाँ पे बात की है usually vote for the party they supported early in life, और यहाँ पे भी उस चीज का जिक्र है कि they remain faithful to that party for life. So ultimately it mentions the same thing, they supported early in life. But problem ये है कि यहाँ पे लिखा है supported early in life, मतलब ये past के बारे में जिक्र है, और यहाँ पे लिखा है पार्टी फॉर लाइफ मतलब भविष्य के बारे में जिक्र है. देयर इज नो मेंशन अबाउट समथिंग इन द पास्ट. ये अभी का ट्रेंड है, अभी से लेके बाद का, और यहाँ पे दिया है सपोर्टेड अर्ली इन लाइफ मतलब पहले वाली बात है. किसी भी चीज में पास का जिक्र नहीं है, एंड देयरफॉर द आंसर इज गोइंग टू बी नॉट गिवन. आप लोगों में से सिर्फ मैं देख सकता था कि पार्थ ही ऐसा लड़का था जिसने इसका आंसर सही दिया था. सो आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी नॉट गिवन, बिकॉज यहाँ पे अर्ली के बारे में जिक्र है, यहाँ पे पार्टी फॉर लाइफ भविष्य के बारे में जिक्र है. You don't need to understand, or you need to don't need to explicitly take an influence कि भाई ये पास के बारे में है, and therefore the answer is going to be not given. Okay fine, let us take the next one. चलो fine, do the next one, equally difficult. इसकी गलती नहीं होनी चाहिए, सिंपल है ये. चलो इसकी गलती नहीं होनी चाहिए. What is the answer, everybody? I should get answers from everybody. Very good. The answer is going to be false. क्या आएगा इसका आंसर? The answer is going to be marked as false, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, अगर आप इसको गौर करोगे, if you look at over here, यहाँ पे लिखा है रेडिकल ग्रुप्स आर ओनली फाउंड विद इन द लेबर पार्टी. और अगर आप यहाँ पे देखोगे, इन फैक्ट it would be true to say that both parties consist of conservative, moderate and radical elements. दोनों पार्टियों में रेडिकल एलिमेंट्स है, और ऊपर में क्वेश्चन में दिया कि रेडिकल ग्रुप सिर्फ और सिर्फ लेबर पार्टी में है. इसका मतलब दिस इंफॉर्मेशन इज फॉल्स. इज इट गेटिंग क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? क्लियर हो गया? अंडरस्टूड? ओके फाइन, नॉट एन इश्यू. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टूड? ओके ग्रेट. सीरियस है, चलो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे वोकैबुलरी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है. दीप ठीक से देखो.
चलो चलो फटाफट. I want answers from everybody. Everybody should give it a try. आप try करोगे तो मजा आएगा. Okay, fine. Shall I explain now? Shall I explain this to you? Very good. चलिए. I am getting answers from all. सबको प्रयत्न करना है इसका. Some yeah, great. So everybody is giving me the answer. Some British voters are confused about who to vote for. वो confused है किसको vote करे. अगर यहाँ से बात करेंगे कि लिखा है, it is true to say that both parties consist of conservative, moderate and radical elements, and therefore the general public is often perplexed. Perplexed का directly मतलब निकल के आता है confused about which party to vote for. तो वही चीज यहाँ पे लिखी है confused, and therefore the answer is going to be marked as true. तो तीसरे का आंसर है ट्रू. इससे ये भी पता चलता है आपको कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो कैब. मैंने आपको समझाया था परप्लेक्स का मतलब होता है कंफ्यूज्ड. अपनी वोकैबुलरी में भी डाल दो. द आंसर ऑफ दिस इज परप्लेक्स्ड. सम मतलब यहाँ पे ऑफ्टन है ना दीप, यहाँ पे ऑफ्टन है, ऑफ्टन परप्लेक्स. तो इसका मतलब भी सारे लोग में कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑफ्टन परप्लेक्स्ड है. दैट्स द रीजन आंसर इज गोइंग टू बी ट्रू. हाँ सम है यहाँ पे जैमिनियन, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे भी उन्होंने सब ऑल पब्लिक इज ऑफ्टन कंफ्यूज परप्लेक्स्ड. मतलब सारी पब्लिक में भी थोड़ी पब्लिक ऐसी है जो ऑफ्टन परप्लेक्स, ज्यादातर नहीं. तो यहाँ पे भी सम इनडायरेक्टली बेसिकली कन्वेज द सेम मीनिंग, एंड देयरफॉर द आंसर इज गोइंग टू बी ट्रू. यहाँ पे भी सब नहीं है, यहाँ पे भी ऑफ्टन ही लिखा है. तो इसी के कारण इसका आंसर है ट्रू. इज इट गेटिंग क्लियर? इट इज नॉट द, अगर ऐसा लिखा होता कि देयरफॉर द जनरल पब्लिक इज ऑलवेज परप्लेक्स्ड तो बात अलग है. तो आप बोलते कि सर सम की बात है, लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने पूरी जो पब्लिक है उसमें भी ऑफ्टन की बात की है, एंड देयरफॉर द आंसर इज गोइंग टू बी ट्रू. ओके चलिए. नो इश्यूज, नो इश्यूज. ट्रू फॉल्स नॉट गिवन तो है ही कंफ्यूजिंग. Maya, I am unmuting you. You need to explain me. You give an answer as true. Can you explain me why the answer is true? So it is given in the paragraph line 1, 2, 3, 4, 5, Now, 6. first of all, can you Sixth. read? Yeah, first of all, can you read the question for me? The Labour Party was formed by the trade unions. Very good. And can you read this entire first 4 lines? Can you do it for Yes, me? sir. Yeah, please. The Labour Party's manifest objective is to safeguard the interest of the common working man and woman, and in effect give them political representation in Parliament. Very good. The party has always had strong connections with the trade unions, and बस therefore बस coming to उसके power. बाद उसके बाद हमारा we are not worried. See the answer is only going to be up to this point of time. Now the Labour Party was formed. ये इसमें ऐसा लिखा है कि party has always had strong connections with the trade unions. For example, if I say that I have got strong connections with for example textile corporation, does it mean that my party is formed by the textile corporation people? Not necessarily. Not necessary. That means when you are not sure, Maya, the answer is going to be not given, because there is no mention over here that this party is formed by the trade unions. मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि मैं अगर गरीबों को पसंद, मतलब मैं गरीबों को सपोर्ट करता हूं, मेरी पार्टी गरीबों को सपोर्ट करती है, और बाद में ये पैराग्राफ में दिया है मेरी पार्टी गरीबों को सपोर्ट करती है, और क्वेश्चन में दिया है कि मेरी पार्टी गरीबों से बनी हुई है, ये नहीं कह सकते आप. सो इसका आंसर होगा नॉट गिवन. तो ये चीज का आपको ध्यान रखना जरूरी है. इज इट गेटिंग क्लियर? वेरी वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैज आल्सो कमिटेड अ स्मॉल
small mistake. Thank you, Maya. Thank you so much. Okay, sir. Okay, Okay, thank sir. you. Thank. थैंक यू. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि आपको ये छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी. मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ठीक से कि आप ऐसी गलती आपने बाहर एक चीज भी अगर बाहर गए ट्रू फॉल्स नॉट गुड में एक चीज ध्यान रखो. एक स्टेप आप बगैर सोचे आगे बढ़े तो गए काम से. यू नीड डोंट नीड टू मेक रेफरेंसेस. यू डोंट नीड टू मेक इम्प्लीकेशंस. अगर ज्यादातर ऐसा किया तो आंसर गलत हो जाएगा. ओके, लेट अस गो फॉर द फिफ्थ वन. Okay. So let me ask Prashant. Many of you have given the right answer, but let me ask Prashant. Can you unmute yourself? Just a minute. And you need to explain me. Prashant, padhoge aap? Yes, sir. So can you read the question first of all? Is everyone, see, first of all, I hope I'm not going fast, my dear students. We need to cover up a lot of things. So I hope I'm not going fast. Is it fine? Are you comfortable with this, with the speed of, taking? Yeah, it is fine. Thank you so much. Great. So Prashant, can you read, my dear friend? Yeah. Yeah. Policies in support of the concept of a welfare society are costly. Are costly. मतलब वो costly का मतलब हाँ, मतलब it, they're expensive, isn't हाँ, it? expensive. Yeah. They're unaffordable. देखो जब आप आते हो ना costly ऐसा मान के मत चलो कि costly आएगा. You need to always start assuming the type of synonyms that you might encounter in your reading. जैसे कि expensive है, unaffordable है, very it is not pocket friendly. ये सारी चीजें आ सकती है. Okay, fine. Hmm. Now here policies in support of the concept of a welfare society are costly hai. Now the main, yeah, you can read from here. You can see my cursor. Can you see my cursor? Yeah, yeah. Yeah, main, yeah. The main problem is that such socialist agendas are extremely expensive to implement and maintain, even in Yes, a comparative. exactly. So this is the answer, my dear friends. So this is what that is mentioned in the question. So answer is going to be true. Is it getting clear, Prashant? I hope Yeah, this is fine. Yeah. yeah, I've written that only. Yeah, that's the reason I have asked you. Okay. So the answer is going to be true. Is it getting clear, everybody? सीधा लिखा हुआ है कि this policies को maintain करना, उसका implementation करना is extremely expensive, and hence the answer is going to be true. Very good. Okay. आगे बढ़ते हैं. ये बहुत है, इसमें बहुत जानने को मिलेगा आपको ये 6th वाले में. Now, before I explain you this, I need somebody to explain me the meaning of the word invariably. Can anybody help me out with the word invariably? What is the meaning of word invariably? Yeah, first of all, somebody has given me, yeah, आप raise करते हो लेकिन मुझे raise, yeah, Piyush, can you tell me what is the meaning of word invariably? What is the meaning of word invariably? Tell me.
Invariably is a very strong word. All of you, please remember one thing. Invariably is a very strong word. मतलब हर बार 100, it's a very strong word. मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि you are invariably going to fail, इसका मतलब आप 100% फेल होंगे. मैं 100% इस्तेमाल ना करूँ और ऐसा बोलूँ कि you are invariably going to fail, इसका मतलब ये हुआ कि always. जाहिर है. Okay, fine. Now, can you tell me the answer, everybody? What is the answer now? Very good. Most of you are getting the right answer. मेरे पढ़ाने का चलो चलो आपके दिमाग में घुसा है. Okay, now somebody will have to read it out for me again. Who? Let me give chance to one student. आप लोगों का interaction बहुत जरूरी है मेरे लिए. Who is going to read for me? Okay, Vibhuti, will you read? Let me give you the chance. चलिए. Okay, read कीजिए Vibhuti. So, can you read the question first? Can you read the question first? Sixth, yeah. Welfare-based societies invariably become bankrupt. Invariably become bankrupt मतलब वो हर बार bankrupt हो जाएगी. मतलब उसका वो तो होने ही वाली है. 100% bankrupt हो जाएगी. हाँ या ना everybody? ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब पहले निकालने के बाद ही आप पैराग्राफ पढ़ो, वरना यू आर गोइंग टू मिस अ लॉट ऑफ ट्रिक्स. तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलफेयर बेस्ड सोसाइटीज आर ऑलवेज गोइंग टू बिकम बैंकरप्ट. बट इफ यू लुक एट नाउ, आई होप दिस यू कैन सी माय कर्सर एंड आई वांट यू पीपल टू, या यहाँ से पढ़ो ये कर्सर से. वेलफेयर Welfare societies tend towards bankruptcy unless government spending is kept in check. वेरी गुड. नाउ व्हेन आई से, Fortunately, या फर्क फर्क खत्म हो गई बात. नाउ मुझे बताने की कोशिश करोगे टेन टुवर्ड्स बैंकरप्सी मतलब क्या होता है. टेन टुवर्ड्स बैंकरप्सी, कैन एनीवन एक्सप्लेन मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, या विभूति यू कैन यू एक्सप्लेन मी टेन टुवर्ड्स बैंकरप्सी मतलब. uh, it is it means it's might going to be यू इट, जैसे आपने फॉर बोला ना एग्जाम्पल, हाँ, नाडो. टेन टुवर्ड्स का मतलब होता है कि होने की संभावना है. देर इज अ लाइकलीहुड ऑफ like there is a likelihood of becoming bankrupt, मतलब bankrupt होने की संभावना है. Let me explain you. If you will not study for 8 hours, you may tend to get a poor score. There is a likelihood of you getting a poor score, मतलब होने की संभावना है. तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर पैराग्राफ में लिखा है कि ये होने की संभावना है और क्वेश्चन में आता है ऐसा ही होगा, द आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी मार्क्ड एज अ फॉल्स आंसर. तो आंसर इसका होगा 6 का फॉल्स. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? अंडरस्टूड? या विभूति, इज इट क्लियर नाउ? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. सो इसका आंसर होगा फॉल्स. अब ये चीज आपको यहां से न रखते हुए यू नीड टू अप्लाई दिस व्हेन यू आर डूइंग पैसेजेस एल्सवेयर एज वेल. मेक श्योर दैट यू अप्लाई दिस व्हेन यू डू द पैसेजेस. क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. या यू कैन म्यूट योरसेल्फ विभूति. या चलिए, सेवंथ वन. देखो पहले ऑलरेडी दिया है लेबर पार्टी और बाद में कंजर्वेटिव पार्टी. सो बहुत ऑब्वियस है. इन द पैराग्राफ देयर इज अ मेंशन ऑफ लेबर पार्टी फर्स्ट एंड देयर इज अ मेंशन ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी. ये दूसरा और तीसरा पैराग्राफ है. मैंने यहाँ पे सिर्फ और सेकंड और थर्ड पैराग्राफ दिया है क्योंकि उसी में हमारा आंसर है. I have not given, mentioned, I have not put down here first and last paragraph. Now you need to tell me what is the answer. Okay, fine. Is it fine? Everybody, has everybody done it? Yes or no? Check it out. शांति से देख लो. Okay, so let me, who is going to explain me this? Who is going to explain me this? Yeah, who is going to explain me? Datta, can you do that? Leher, Datta. Yeah, boys, I want somebody from boy to help me out. चलो कौन explain करेगा? Parth, will you explain me?
Yeah, I'm unmuting you, Parth. Explain. सर इधर पैराग्राफ में कहीं नहीं पर नहीं भी नहीं 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 नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ो बच्चों के लिए. okay, okay, yeah. The Conservative Party was formed after the Labour Party. Okay, fine. Then So हमें दोनों पैराग्राफ पढ़ने के बाद ऐसा पता चलता है कि ऐसा कहीं पे भी दिया नहीं है कि कंजर्वेटिव वेरी पार्टी गुड पहले पार्थ, फॉर्म हुई वेरी है गुड. लेबर एग्जैक्टली. तो पार्टी। स्टूडेंट्स ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि भले ही पैराग्राफ लेबर पार्टी के बारे में पहले दिया है और कंजर्वेटिव पार्टी के बारे में बाद में दिया है, देयर इज नो मेंशन इन द एंटायर टू पैराग्राफ्स. और पहले और चौथे पैराग्राफ में तो नहीं है, वो मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे भी सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में कहीं पे भी जिक्र नहीं है कि कंजर्वेटिव पार्टी लेबर पार्टी के बाद बनी थी या कौन पार्टी पहले बनी थी. उसी के कारण द आंसर इज गोइंग टू बी मार्क्ड एज अ नॉट गिवन. इज इट गेटिंग क्लियर एवरीबॉडी? द आंसर इज गोइंग टू बी नॉट गिवन. अंडरस्टूड? देखो ये आपको छोटी छोटी चीजें समझा रही है कि आपको क्या ध्यान रखना है एग्जाम में. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? यस और नो? या क्लियर एवरीबॉडी? या दैट्स ट्रू. ग्रेट. चलिए आगे बढ़ते हैं. 8. Okay, done everybody? Have you applied your brains? That is most important. Don't worry about getting right or wrong answer. You should have applied your brains for this. So may I know, yeah, who is going to help me out? Who is going to help me out? First of all, I want everybody to remain. ये बहुत important चीज है. चलो कौन help करेगा? Let me see. Just a minute. Yeah, Datta, would you? Yeah, explain. Hello, sir. Oh, Datta, you know, the things that there is a reverberation of voice. Yeah, can you speak now? Yes. Datta, your voice is basically getting echoed, so I'll have to mute you. Yeah, Nopur, can you explain me? Yes, sir. Yeah, so can you read the question? Yes. According to the author, theories do not always work in practice. पहले मुझे उसका मतलब समझाओ. Author means to say that the theories don't always work. Like if we assume things to be X, they always don't work like those things. Okay, अब यहाँ पे मैं सब लोगों को एक बहुत अच्छी ट्रिक सिखाना चाहता हूँ. यहाँ पे बहुत अच्छी चीज सिखाना चाहता हूँ. पहले ये देखो कि इज इट अ कंप्लीट सेंटेंस और अ सेंटेंस विच हैज गॉट प्लस माइनस प्लस. अब मैं अगर बोलता हूँ प्लस माइनस मतलब जिसमें ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल होता है कि हो सकता है नहीं हो सकता. अब मुझे बताओ ये कैसा सेंटेंस है? अकॉर्डिंग टू द ऑथर, थियरीज डू नॉट ऑलवेज वर्क इन प्रैक्टिस. यहाँ पे आप देख सकते हो कि थियरीज डू नॉट, देखो यहाँ पे ऐसा लिखा होता थियरीज डू नॉट वर्क इन प्रैक्टिस, तो बात अलग है. थियरीज डू नॉट वर्क इन प्रैक्टिस का मतलब होता है कि थियरी कभी भी प्रैक्टिस में अगर करते हो तो कभी भी काम नहीं करती. ये समझने वाली बात है आप लोगों को.
लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे देखोगे, ऑलवेज शब्द का इस्तेमाल है, मतलब कभी कभार ऐसा होता है, डू नॉट ऑलवेज, मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि हमने जो थियोरेटिकली सोचा है, फर्ज करो आपने अपने बंगलों का रिनोवेशन के बारे में सोचा है, एंड यू थॉट थियोरेटिकली, यू फाउंड आउट दैट इट माइट टेक 10 लाख में रिनोवेशन हो जाएगा, तो आप कह सकते हो अकॉर्डिंग, लेकिन 10 का 12 हो सकता है, कभी कभार 13-14 हो सकता है, तो आप कह सकते हो अकॉर्डिंग थियरीज, थियोरेटिकल कैलकुलेशन डू नॉट ऑलवेज वर्किंग प्रैक्टिस, हो सकता है, नहीं हो सकता. Now, yeah, Nupur, can you read this practice? Yes, practice, of course, may make nonsense of even the best theoretical intentions. That's it, खत्म हो गई. यहां पे भी देखो बात है कि प्रैक्टिस ऑफ कोर्स मे मेक, यहां पे भी मे का इस्तेमाल किया है, मतलब यहाँ पे भी अप्स एंड डाउन्स वाली बात है कि हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन बात तो वही निकल के आती है कि मे मेक नॉनसेंस ऑफ इवन द बेस्ट थियोरेटिकल इंटेंशन, मतलब अगर प्रैक्टिकली कभी कभार सोचा जाए तो भल भली थियरी जो है वो नॉनसेंस हो जाती है प्रैक्टिकली जब सोचा जाए तब, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि थियरी इज ऑलवेज डू नॉट वर्क इन प्रैक्टिस. तो दोनों का क्वालिफाइंग यही है, यहाँ पे भी लिखा है नॉट और ऑलवेज, और यहाँ पे भी मे का इस्तेमाल किया है, दोनों तरफ ऐसा है कि उधर उधर की बात है. अगर एक इसमें से एक भी जगह पे ऐसा होता कि यहाँ पे अगर ऐसा लगा थियरीज क्या होता तो फॉल्स होता, चलो नुपुर कर, यहाँ पे क्या नहीं होता तो फॉल्स होता, अकॉर्डिंग टू द ऑथर क्या होता तो यहाँ पे ये सेंटेंस फॉल्स हो जाता, कैन यू टेल मी? Theories do not work in practice. वेरी गुड. तो यहाँ पे ऑलवेज नहीं होता, देन द आंसर वुड हैव बीन फॉल्स, लेकिन क्योंकि यहाँ पे भी ऑलवेज है और यहाँ पे भी मे की बात के, दोनों ऐसे वर्ड सेंटेंसेस है जहां पे लिखा है भाई हो सकता है कि थियरी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट अगर करने जाए तो ना हो, इसी के कारण इसका आंसर है ट्रू. थैंक यू नूपुर, थैंक यू सो मच. इज इट गेटिंग क्लियर एवरीबडी? समझा रहे हो, पता चल रहा है मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ आप लोगों को. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट स्टूडेंट्स? अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? या क्लियर हुआ सबको? वेरी गुड. ओके. या नेहा दोनों का, या यहाँ पे भी दिया है नेहा, यहाँ पे भी नेहा दिया है कि प्रैक्टिस जब आप करने जाओगे थियोरी, तो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने जाओगे तो थियोरी कभी कभार ऐसा होता है कि थियोरेटिकली जो हमने सोचा है वो नहीं होता, और वही चीज यहाँ पे दी है इन द पैराग्राफ कि हम जब सोचने जाते हैं, जब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने जाते हैं तो हो सकता है कि मे मेक नॉनसेंस, मतलब उसका गड़बड़ हो जाता है, उसी के कारण द आंसर इज गोइंग टू बी ट्रू. ओके फाइन, आगे बढ़ेंगे, चलिए. अब ये बहुत मजे वाली बात है, लेट अस सी हु गेट्स दिस राइट. Okay, what is the answer of this one? Yes guys. Okay, चलो एक काम करते हैं, बिफोर यू गिविंग मी द आंसर, लेट मी टेक अ स्मॉल एग्जांपल. चलिए मुझे बताओ इसका आंसर क्या है, चलो मुझे इसका बताओ आंसर क्या है. अगर पैसेज में लिखा है दिस इज द पैसेज, नहीं पहले मेरे एग्जांपल का आंसर दो क्या है. दिखाई दे रहा है सबको? कैन एनीवन सी दिस व्हाट आई हैव रिटन इनसाइड ऑन द स्क्रीनशॉट? दिखा, स्क्रीन पे जो लिखा है वो दिखाई दे रहा है सबको? एवरीबॉडी?
Okay, fine. Now tell me what is the answer of this one. ये पैराग्राफ में ऐसा लिखा है सचिन तेंदुलकर इज अ ग्रेट बैट्समैन और क्वेश्चन में लिखा है सचिन तेंदुलकर is a lot greater than क्या आंसर आएगा इसका? What is the answer of this going to come? Sachin Tendulkar is a great batsman. Sachin Tendulkar is more greater than Brian Lara. What is the answer of this? What is the answer of this? अगर ये नहीं पता है तो आप आंसर इसका भी आंसर गलत होगा. पैराग्राफ में दिया है सचिन तेंदुलकर इज अ ग्रेट बैट्समैन, लेकिन यहाँ पे लिखा है सचिन तेंदुलकर इज मोर ग्रेटर. एक मिनट, लेट मी पुट इट दिस वे. यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक मिनट. चलो यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं भूल गया. यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ Sachin Tendulkar is a more greater. I forgot to mention over here batsman. Sachin Tendulkar is a more greater batsman than Brian Lara. तो क्या होगा? What is the answer then going to be? Sachin Tendulkar is a great batsman is mentioned in paragraph और question में लिखा है Sachin Tendulkar is a more greater batsman. I forgot to mention batsman over here than Brian Lara. तो क्या होगा? आंसर इज गोइंग टू बी नॉट गिवन. क्यों नॉट गिवन है? मेरी बात सुनो. जब भी आपका कंपैरिजन आता है, whenever you got comparison, for example, कि यहाँ पे लिखा है सचिन तेंदुलकर इज अ ग्रेट बैट्समैन, पैराग्राफ में उसी के बारे में दिया है, लेकिन उसके कंपैरिजन किसी और के साथ नहीं की है. वी आर नॉट कंपेयर दैट विद एनीबडी एल्स. तो जाहिर है आंसर इज गोइंग टू बी नॉट गिवन. अगर आप यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे देखो द ग्रीन पार्टीज आर ए लॉट स्मॉलर इन यूरोपियन कंट्रीज, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि ग्रीन पार्टीज स्मॉलर पॉलिटिकल पार्टीज सच एज ग्रीन, मतलब वो छोटी पार्टी है, लेकिन क्या वो दूसरी पार्टियों के कंपैरिजन में ज्यादा छोटी है? ऐसा कहीं जिक्र नहीं किया गया है. छोटी है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है ज्यादा छोटी है इन कंपैरिजन इन द यूरोपियन कंट्रीज, एंड देयरफॉर द आंसर इज गोइंग टू बी नॉट गिवन. जब भी याद रखो कंपैरिजन ज्यादा कर दिए, उन्होंने कंपैरिजन ज्यादा कर दिए, तो आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी नॉट गिवन, क्योंकि आपको ये पता नहीं है. Is it getting clear? So very important for you to understand this. Okay. Now any doubts, any queries now? पता चला मैं क्या बता रहा हूँ? लॉट कर दिया है. स्मॉलर होता तो बात तक, लॉट मतलब ज्यादा स्मॉलर है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, एंड हेंस द आंसर इज गोइंग टू बी नॉट गिवन. अंडरस्टूड एवरीबडी? फर्स्ट ऑफ ऑल पता चल रहा है मैं काफी टाइम ले रहा हूं ताकि आपका ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्लियर हो जाए. अंडरस्टूड एवरीबडी? श्योर? वेरी गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं. लास्ट वन. ये आपका इजी हो जाना चाहिए आपको. आप वापस देखो. मैं चाहूंगा नेहा जी और सब लोग वापस देखे. जस्ट गो थ्रू इट वंस अगेन. फिर से देखो आप. नहीं नहीं नहीं. Yes, who is going to explain me now? चलो, who is going to explain me now? solely मतलब 100%. solely का मतलब होता है 100%. solely is 100%. who is going to explain me? Yes. Yeah, Piyush, can you explain me? Yeah, who's going to explain me, students? Yeah, just a minute. Final, false. Okay, fine. Who is going to explain me, students? चलो चलो, आप में से कोई एक तो होना चाहिए जो मुझे एक्सप्लेन करे कि क्या आंसर है इसका. Okay, Neha, can you explain me? Let me give you the chance. चलिए. Can you read the paragraph? First, read the question, everybody. Yeah, Neha, can you read the question? Sir, Louder. the Yeah. smaller
the smaller parties are only concerned about the environment. अब यहाँ पे देखो ठीक है? स्ट्रॉन्ग, या एक मिनट, स्ट्रॉन्ग वर्ड का इस्तेमाल किया, आर ओनली कंसर्न। जब ऐसे वर्ड्स आते हैं तो आपको, आपका दिमाग, आंखें खुल जानी चाहिए कि यहाँ पे लिखा है द स्मॉलर पार्टीज आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द एनवायरनमेंट। मतलब ये छोटी पार्टियां जो होती है वो हर वक्त सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट के बारे में उनका कंसर्न रहता है। ओके फाइन। नाउ यहाँ पे देखते हैं, ये ग्रीन पार्टी छोटी है, फॉर एग्जाम्पल से पढ़ो। Green, for example, is almost solely concerned the environment. बस 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 खत्म हो Moreover, गया, बस खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल इज ऑलमोस्ट सोली कंसर्न विद एनवायरनमेंट। अब मैं चाहूंगा सारे लोग इसको गौर से देखें, बहुत मजा आएगा। फर्ज कीजिए, फर्ज कीजिए ये नहीं होता तो क्या आंसर होता? ये नहीं है, चलो अब बताओ मुझे। then what would have been the answer? Assume that almost is not there. Assume that almost is not there. Then what would have been the answer? Then what would have been the answer? Very good. I am very happy that most of you know. तो true होता, तो ये ट्रू होता, क्योंकि दोनों एक्सट्रीम सेंटेंसेस है, दोनों एक्सट्रीम सेंटेंसेस है, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा है इज सोनली कंसर्न और यहाँ पे भी लिखा है और ओनली कंसर्न, दोनों सेम है। तो इसका मतलब तो होता आंसर वुड हैव बीन ट्रू। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग व्हाट आई एम, थोड़ा सा अलग लेवल का डिस्कशन हम कर रहे हैं, तो आपको दिमाग लगाना है कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो ऑलमोस्ट नहीं होता तो दोनों का मतलब ये होता कि सोलली कंसर्न है, मतलब 100% कंसर्न है, देन द आंसर वुड हैव बीन ट्रू। लेकिन ये ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट द केस। यहाँ पे ऑलमोस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑलमोस्ट लिखा हुआ, इसका मतलब कि ऑलमोस्ट मतलब लगभग 100%। इसका मतलब यहाँ पे चटकबारी है। तो मैंने तभी आपको बताया था कि जहां पे लिखा है कि ऑलमोस्ट मतलब लगभग लगभग होने की संभावना है, और यहाँ पे लिखा है ओनली कंसर्न है, दैट मींस द आंसर इज गोइंग टू बी फॉल्स। इज इट गेटिंग क्लियर एवरीबडी? यस और नो? अंडरस्टूड और नॉट? બધાને ખબર પડી? is everyone understand, I mean understanding what I am trying to say? yeah क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू नेहा जी। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये छोटी सी चीज है कि यू नो कैसे करना है, ये आप एक बार फिर से इसको देख लेना। ऐसा हो तो आई विल हैव द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस यू नो नेक्स्ट टाइम, so you can do it. Yeah, have you got energy to do another passage? मैं ऐसा सोच रहा हूँ, वापस I'll be taking one more passage next time when we start. तो अगले वीक भी सेशन होगा। इस बार मैंने 2 सेशन लिए। I took 2 sessions this time. I took it on Monday and I took it on Saturday. But Monday I'm not there next time. Monday में नहीं हूँ इस बार. So I took the session on Saturday, but I'll take it once again next week. So don't worry about that. But I hope you enjoyed the session, students. Yeah, I hope you enjoyed the session. Very good. Okay, now if you have got time, I am willing to go ahead. I don't mind if yeah, if you have got time, I am willing to go ahead. Otherwise, you know, I'll take it next time because आपको दिमाग में ये saturation level नहीं होना चाहिए. As you wish. Dave is telling me next time. Vibhuti is saying yes, go ahead. ओके क्या करना है बोलो। एक छोटा सा पैसेज करते हैं जो हमने लास्ट टाइम किया था, लेकिन डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। एज यू विश। yes we are ready. Okay, fine, let us go ahead. चलिए। या फिर एक काम करते हैं, लेट अस टेक अ स्मॉल सेशन ऑफ ग्रामर। इज इट फाइन? आई टेक अ स्मॉल सेशन ऑफ ग्रामर। इज इट फाइन स्टूडेंट्स? Because you know reading will take long time, so I'll take a small session of grammar. Is it comfortable? Because that can be done you know in this time. Yeah, ठीक है चलिए। Now आपको पता होगा, you know what do you mean, I don't know how many of you know about parallelism, you know. Now can you tell me what is this? What is a parallel structure? ये बहुत important है, parallel structure. When information is a sentence is given in the form of a list of a series, all components must be grammatically parallel or equal. जब आप पूरा सेंटेंस लिखते हो, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है समझना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है समझना कि बिकॉज यू आर एनी हाउ गोइंग टू राइट यू नो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आप काफी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखोगे, तो जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखते हो तो आप लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखोगे, तो हर वक्त ये समझना जरूरी है कि जब आप लंबे सेंटेंस लिखते हो तो वो ग्रामेटिकली पैरेलल या इक्वल होने चाहिए। There may be only 2 components or there may be many components in a list. However, if the first one is for example an infinitive, the rest must also be infinitives. जब आप लंबा सेंटेंस लिखते हो उसका पहला कंपोनेंट इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है प्ले है, फॉर एग्जांपल प्ले वर्ब है तो आगे हो जाता है टू प्ले, तो वो इन्फिनेटिव हो जाता है।
प्ले का प्लेइंग हो जाता है उसको हम बोलेंगे जीरंड या तो फिर वर्ब इन आईएनजी फॉर्म। आई रिपीट, प्ले है उसके आगे टू लगा दो, टू प्ले, इट बिकम्स एन इन्फिनेटिव, और प्ले के पीछे आईएनजी लगा दो तो इट बिकम्स एन वर्ब इन आईएनजी फॉर्म, या तो फिर उसका दूसरा नाम है जीरंड। तो अगर आप सेंटेंस लगाते हो, बनाते हो, तो अगर पहला इन्फिनेटिव है तो पीछे वाले भी इन्फिनेटिव ही होने चाहिए। पहला जीरंड है तो पीछे वाले भी जीरंड ही होने चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंस। अब मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है। आप देख सकते हो, पीटर इज रिच, हैंडसम एंड मेनी पीपल लाइक हिम। पहला जो वर्ड है रिच वो एडजेक्टिव है, हैंडसम वो भी एडजेक्टिव है, मेनी पीपल लाइक हिम वो क्लॉज है। तो एक चीज याद रखनी है, इट इज नॉट अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, बिकॉज पहला वाला एडजेक्टिव है, दूसरा वाला एडजेक्टिव और तीसरा क्लॉज है। तो सर क्या होना चाहिए? तो ऐसा कुछ होना चाहिए, पीटर इज रिच, हैंडसम एंड पॉपुलर। तो आप देख सकते हो द फर्स्ट वन इज एन एडजेक्टिव, second one is also an adjective, and third one is also an adjective. So whenever you are making a bigger sentence, you need to make sure that all your elements in that sentence should be, it should basically be parallel to each other. Is it getting clear everybody? Yes or no? पता चला मैं क्या बता रहा हूं? वरना होगा क्या, ग्रामेटिकली आपको लगेगा वो सही है लेकिन हो जाएगा वो गलत। अंडरस्टूड? तो ये छोटी सी चीज याद रखो कि हर वक्त वो सेंटेंसेस जो है वो पैरेलल होने चाहिए। लेट मी गिव अनदर एग्जांपल। Mr. Henry is a lawyer, politician and he teaches. The first word, अगर आप बात करें तो पहला जो लॉयर है वो नाउन है, पॉलिटिशियन भी नाउन है, लेकिन एंड ही टीचेस इज नॉट द राइट सेंटेंस, इज नॉट द राइट वे ऑफ पुटिंग द थिंग्स, क्योंकि ही टीचेस जो है वो क्लॉज है। तो बताओ क्या आंसर आएगा इसका, व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ दिस? चलो बताने का कष्ट करो मुझे। Mr. Henry is a lawyer, a politician and a teacher. तो आप देख सकते हो सारे के सारे नाउन हो गए। Is it getting clear? तो वो ये हुआ आपका पैरेलल स्ट्रक्चर। छोटी सी मिस्टेक हो जाती है बच्चों से और ये चेक किया जाता है। अगर आप IELTS के बैंड डिस्क्रिप्टर्स पढ़ोगे, राइटिंग और स्पीकिंग में दोनों में बिल्कुल साफ लिखा है that sentence should be parallel. Let us take a third example. Okay, fine. तो ये बताएंगे द सोल्जर्स अप्रोच द एनिमी कैंप स्लोली एंड साइलेंट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्लोली जो है, व्हाट इज स्लोली? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज स्लोली ओवर हियर? स्लोली जो आपका है वो एडवर्ब है और साइलेंट आपका है एडजेक्टिव है। तो ये गलत है, आपका आंसर होना चाहिए द सोल्जर्स अप्रोच द एनिमी कैंप स्लोली एंड साइलेंटली, बिकॉज स्लोली भी एडवर्ब हुआ और साइलेंटली भी एडवर्ब हुआ। जबकि पहले वाले सेंटेंस में जो पैरेलल नहीं था, स्लोली वो था एडवर्ब और साइलेंट वाज एन एडजेक्टिव। सो ये नॉन पैरेलल हुआ और ये पैरेलल हो जाएगा। एग्जांपल 4, शी लाइक्स टू फिश, स्विम एंड सर्फ। बहुत अच्छा है वर्ड, बताओ मुझे ये क्या है? व्हाट इज द मिस्टेक इन दिस? कैन एनीबडी टेल मी द राइट आंसर ऑफ दिस? चलो बताओ। शी लाइक्स टू फिश, स्विम एंड सर्फिंग। अब यहां पे गौर करें, यहां पे देखने वाली बात यह है कि सी लाइक्स टू फिश, टू फिश इज एन इन्फिनेटिव, ये इन्फिनेटिव है आपका। मेरी इससे इस बिल्कुल गौर से देखो, दो तरीके हैं इसको लिखने के लिए। सी लाइक्स टू फिश, स्विम एंड सर्फिंग। टू फिश इज एन इन्फिनेटिव, स्विम इज द द कॉमन फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब, और सर्फिंग जो है वो है आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब तीनों तीन चीज का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल गलत हो जाती है बात। इन्फिनेटिव का मतलब पूरा हॉच पॉच कर दिया है मैंने, टू फिश का इस्तेमाल किया है, स्विम का मतलब सिंपल वर्ब का इस्तेमाल किया है और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का भी इस्तेमाल किया है। तो ये पैरेलल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मार्क्स कटेंगे आपके। आप या तो फिर ऐसा लिखो, सी लाइक्स टू फिश, देखने वाली बात है, इसको गौर से देखो, सी लाइक्स टू फिश, टू स्विम एंड टू सर्फ। सो आइदर यू राइट ऑल ऑफ देम इन इन्फिनेटिव्स। देखो टू टू टू, दो तीनों में टू 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 का इस्तेमाल किया, या तो फिर आप ऐसा लिखो, सी लाइक्स फिशिंग, स्विमिंग एंड सर्फिंग, तीनों में आईएनजी फॉर्म। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ये बहुत अच्छा एग्जांपल है आपको समझाने के लिए कि आपको पैरेलल स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? क्लियर हो गया ये? या ठीक से देखो, इसको शांति से देखो, जब भी आप सेंटेंसेस बनाते हो तो देखो कि ये पैरेलल है कि नहीं। ओके फाइन, ग्रेट, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब बताएंगे इसका आंसर क्या होगा।
when teenagers finish high school they have several choices, going to college, getting a job or the army. यहाँ पे आप गौर करोगे तो देखो ये जो phrases है उसमें going मतलब verb plus नाउन फ्रेज है, गेटिंग अ जॉब वर्ब प्लस नाउन फ्रेज, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाउन फ्रेज है, तो ये नहीं चलेगा, ये पैरेलल नहीं है. आंसर इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली जल्दी. सो व्हेन टीनेजर्स फिनिश हाई स्कूल दे हैव सेवरल चॉइसेस, गोइंग टू कॉलेज ये भी पैरेलल हो गया, गेटिंग अ जॉब ये भी पैरेलल है, और ज्वाइनिंग द आर्मी. नाउ ऑल द एंटायर सेंटेंस हैज बिकम पैरेलल. तो आप जब लिखते हो तो ये चीज का ध्यान रखना अनिवार्य है. इज इट गेटिंग क्लियर एवरीबडी, यस और नो? क्लियर हो गया? भाई जवाब दो मुझे, यस और नो? ओके फाइन, थैंक यू. यस और नो करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, करो चलो जल्दी से. लास्ट, चलो एग्जांपल नंबर 6. अब मुझे बताओ इसमें क्या गड़बड़ है. टेल मी व्हाट इज द, इसमें क्या करोगे? एनरिक एंटर द रूम, सेट डाउन एंड इज ओपनिंग हिज बुक. इसका सही करके बताओ मुझे सेंटेंस, पूरा सेंटेंस लिख के मुझे बताओ. चलो टेल मी व्हाट इज द आंसर. इज ओपनिंग के बदले क्या आएगा? इज ओपनिंग के बदले ओपन्ड इज बुक. ओपन पास्ट टेंस में आएगा, सब कुछ पास्ट टेंस में आएगा. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन पास्ट टेंस, क्योंकि देखो एंटर्ड इज पास्ट टेंस, सेट डाउन वो पास्ट टेंस में है, एंड इज ओपनिंग इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. दैट मींस ये गलत है. तो आंसर आएगा अमित वॉज ओपन नहीं, सिर्फ ईडी फॉर्म. देखो यहाँ पे भी वॉज सेटिंग सिटिंग नहीं है, तो सिर्फ होगा एंड ओपन्ड इज बुक. इज इट गेटिंग क्लियर? तो ये आपका आंसर सही होगा. देखो ये आपका सही आंसर है. ये नॉन पैरेलल है और ये पैरेलल है. एनरिक एंटर द रूम, सेट डाउन एंड ओपन द बुक. क्लियर हो गया आपको सबको? इज इट क्लियर एवरीबडी? अंडरस्टूड? तो जब लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाते हो तो उसका जरा गौर करना. चलो अब एक्सरसाइज करते हैं. चलो मुझे बताओ इसका आंसर क्या है, फटाफट बताओ. 2 मिनट लगेंगे. पहले अपने उसमें लिख दो और बाद में चेक करो. दूसरे का जरा ध्यान रखना. मैंने बताया था आपको कि पास्ट टेंस का नॉलेज बहुत जरूरी है. पास्ट टेंस ठीक से देखो, सारे वर्ब के पास्ट. मैंने आपको पास्ट टेंस की वो एक पीडीएफ भी भेजी हुई थी. वेरी गुड, मेनी ऑफ यू आर गिविंग मी द राइट आंसर्स. वेरी नाइस. ये आपको बार बार हर वक्त याद रहेगा कि लंबे सेंटेंसेस आप बनाओ, लेकिन इसका ध्यान रखना, वरना फायदे के बदले गैर फायदा हो जाएगा. ओके फाइन, मेनी ऑफ यू आर गेटिंग द राइट आंसर. लेकिन फिर भी लेट अस चेक द आंसर्स. और मुझे बताओ कि किसके सबके सब सही पड़े. आई वांट एवरीबॉडी टू एक्सप्लेन. चेक करो पहले और मुझे बताओ कि किसके सही, सबके सब आंसर सही है. यहाँ पे सेकंड वाले में मार्सिया इज एन स्कॉलर, एन एथलीट एंड एन आर्टिस्ट आएगा. अगर आपने एन नहीं लिखा द आंसर इज गोइंग टू बी मार्क्ड एज अ रॉन्ग आंसर.
देखो इसमें फोर्थ में देखो क्या है, आईएनजी फॉर्म है, प्लेइंग इन द मड, रनिंग थ्रू पडल्स एंड गेटिंग वेरी डर्टी। तो ये समझना बहुत जरूरी है, गेटिंग वेरी डर्टी। वेरी गुड जिल। एंड फाइनली कलेक्टिंग स्टेम्स, देखो ये आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट होता है। प्लेइंग चेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ वन। एंड माउंटिंग, क्योंकि ये आईएनजी है, दूसरा भी आईएनजी होना चाहिए और तीसरा भी आईएनजी होना चाहिए। बटरफ्लाइज आर डेरिक्स हॉबीज, सो ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, वेरी गुड। इज इट क्लियर नाउ? पैरेलल स्ट्रक्चर सबको पता चल गया अब? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? इट्स ऑलमोस्ट 1 आवर एंड 20 मिनट्स होने को आए हैं, सो वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग द सेशन। होप यू एंजॉयड एवरीबडी। वेरी गुड, बट इज इट क्लियर? पता चल गया? हाँ, वेरी गुड, नाइस, चलो ठीक है बात। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अगले वीक वापस करेंगे, वापस वो करेंगे, यू नो विल गेट। ओके सुरभि, सुरभि 5 में से 3 ही सही पड़े, ऐसा क्या हो गया? ओके, नो इश्यूज। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको भविष्य में फॉर एग्जांपल अगर आपको करना है तो यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट, सो डोंट वरी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, इट वाज ग्रेट। आई एम सो सॉरी, मैंने आपका सैटरडे बिगाड़ दिया, आप लोगों का सैटरडे बिगाड़ दिया। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, बट यू नो आई थॉट ऑफ मैंने बोला कि मैं मंडे को नहीं हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। I'll give it to you. Thank you so much, students. Thank you so much. I hope you enjoy the session and we'll again meet next week. Don't worry. Thank you. Bye.